آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کے ہائی لائٹس۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے بڑا دعویٰ، حزب اللہ کے حملے میں زخمی ہوئے 2150 اسرائیلی، نہاریہ میں ہوا زیادہ تر کا علاج۔ ٹاپ امریکی جنرل کا عجب بیان، کہا حزب اللہ کے بدلہ لینے سے ریجنل وار کا خطرہ ہوا کم۔ ایک اور اسرائیلی ہوسٹیج کو آئی ڈی ایف نے کیا زندہ برآمد، فرحان القادی 7 اکتوبر سے تھے حماس کی قید میں۔ ویسٹ بینک میں ایک دن کی ہڑتال، اسرائیلی حملے میں 5 لوگوں کی موت سے غصے میں فلسطینی، اور سوڈان میں باڑھ نے بڑھائی آفت، اب تک 130 لوگوں کی موت۔ آزاد بولیں انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 27 اگست 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا نے حزب اللہ کے حملوں میں زخمی ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد کو لے کر بڑی خبر چھاپی ہے۔ اس خبر کے مطابق ان حملوں میں 2000 سے زیادہ اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، 2000 سے زیادہ۔ اس رپورٹ میں زائنی حکومت کے میڈیا ہاؤسز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شمال میں قبضے والے فلسطین پر لیبنان کے موومنٹ حزب اللہ کے حملوں میں لگ بھگ 2150 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں نیتن یاہو کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ دنیا کو کچھ پتہ چلے، مگر اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس یہاں تک موقع پر پہنچ گئے۔ المنار سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نارتھ فلسطین میں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ قبضے والے نارتھ فلسطین میں، جہاں اسرائیل کا ہولڈ ہے، حزب اللہ کے حملے ہیں۔ اس نارتھ فلسطین میں حزب اللہ کے آپریشن کی شروعات کے بعد سے 1700 زخمی اسرائیلیوں کا نہاریہ کے الجلیل میڈیکل سینٹر میں علاج کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے حملوں میں زخمی ہوئے 450 دوسرے لوگوں کو بھی زیفٹ کے زیو میڈیکل سینٹر میں علاج دیا گیا تھا۔ یہاں یاد رہے دوستو کہ 25 اگست کو حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈر فواد شکر کی موت کے بدلے کے پہلے فیز میں حزب اللہ نے نارتھ ٹیل اویو میں بہت اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ حملے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے آگے ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں۔ ایک ٹاپ امریکی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ کے لیے بدلے سے اب ریجنل وار کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین اور امریکی ایئر فورس کے جنرل چارلز کیو براؤن نے رائٹرز کو بتایا کہ حزب اللہ کا جوابی آپریشن اسرائیل کے خلاف 2 بڑے دھمکی بھرے حملوں میں سے ایک تھا۔ حزب اللہ کا آپریشن بنا کسی ڈائریکٹ تھریٹ کے پورا ہو گیا۔ براؤن نے کہا کہ آگے ریجنل وار نہ چھڑے، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا آپریشن یعنی ایران کا حملہ کیسے کام کرے گا اور وہ کس لیول کا ہوگا۔ یعنی امریکہ اب حزب اللہ کی طرف سے مطمئن ہے، سکون کی سانس لے سکتا ہے کہ ہاں یہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حزب اللہ کے حملے میں اسرائیل کا کوئی بھی جونیئر رینک کا افسر نہیں مارا گیا، جبکہ حزب اللہ کا ٹاپ کمانڈر مارا گیا تھا۔ حزب اللہ نے بدلہ پورا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، کچھ جگہ چرچا ہے، حالانکہ اسے پہلا فیز کہا تھا حزب اللہ نے۔ امریکہ اسی وجہ سے سکون میں ہے کہ چلو حزب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بدلہ پورا ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حزب اللہ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب تو خود حزب اللہ یا وقت دے سکتا ہے۔ ہم کچھ اور خبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے دوستو، 10.5 مہینے کی قید کے بعد 27 اگست 2024 یعنی کہ آج آئی ڈی ایف نے یہ اعلان کیا کہ اس نے ساؤتھ غزہ سے حماس کے قبضے سے ایک ہوسٹیج فرحان القادی کو بچا لیا ہے۔ یہ عرب مسلمان ہیں جو اسرائیل کے سٹیزن ہیں۔ 52 سال کے فرحان القادی 7 اکتوبر سے حماس کی قید میں تھے۔ قید سے چھوٹنے کے بعد ایک اسپتال سے ان کی پہلی تصویر سامنے آئی، اپنے رشتہ دار یا بیٹے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی صحت ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ فرحان القادی ایک عرب بیدوئین شہر راحت کے پاس القصوم علاقے میں رہتے ہیں۔ 7 اکتوبر کی صبح کبوتز میگن پیکنگ ہاؤس جہاں حماس کا حملہ ہوا تھا، وہاں وہ گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے، اور وہیں سے حماس کے لڑاکے، القسام بریگیڈ کے لڑاکے انہیں پکڑ کر غزہ لے گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ میں ایک سرنگ سے برآمد ہوئے ہیں۔ آئی ڈی ایف کو شن بیٹ کو آگے ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں۔ اسرائیل صرف فلسطینیوں کی زمین ہی نہیں بلکہ فلسطینیوں کے مردوں کے جسم بھی قبضہ رہا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے 552 فلسطینیوں کی باڈیز اپنے قبضے میں ابھی تک لے رکھی ہیں، جنہیں وہ لوٹا نہیں رہا۔ وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ المیادین کی خبر کے مطابق فلسطینی پرزنرز سوسائٹی PPS نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی لوگوں کے خلاف اپنی جینوسائیڈل وار
वॉर शुरू करने के बाद से इजरायली ऑक्यूपेशन ने फ़लस्तीनी शहीदों के जिस्मों को रोकने के अपने चलन को बढ़ा दिया है। बयान के मुताबिक सो कॉल्ड सिमेट्रीज ऑफ नंबर्स और जो बाकी रेफ्रिजरेटेड होते हैं ना, मॉर्चरीज होती हैं, उनमें मुर्दा जिस्मों की कुल तादाद 552 है। इनमें 9 औरतें हैं, उनके जिस्म हैं, 32 कैदियों के जिस्म हैं जो इज़राइल की जेलों में गए थे और वहाँ उनकी मौत हो गई। 18 साल से कम उम्र के 55 बच्चों की बॉडीज़ हैं और लेबनान के फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले 6 फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ भी शामिल हैं। इज़राइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आम यहूदियों और सेटलर्स का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलमायदीन की खबर के मुताबिक टेल अवीव में हज़ारों की तादाद में जुटे इजरायलियों ने नारे लगाए कि नेतन्याहू हमारे बच्चों को दफना रहे हैं, यानी वो उनके मारे जाने के जिम्मेदार हैं, उनके कातिल हैं। इजरायली बाशिंदों और होस्टेजेस के रिश्तेदार होस्टेज डील की मांग को लेकर टेल अवीव में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने हमास से समझौता ना हो पाने के लिए इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन पर होस्टेजेस को वापस लाने के बजाय अपनी पावर को, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए इजराइल को एक रीजनल वॉर में घसीटने का इल्ज़ाम लगाया। अब कुछ खबरें लाइव। सूडान पर कुदरत का कहर दिख रहा है और कुदरत बहुत नाराज़ दिख रही है इस गरीब मुल्क से, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है बड़ी मूसलाधार। घर के घर तबाह हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ रिवर नाइल की वजह से काफ़ी तबाही हुई है, उसमें आई बाढ़ की वजह से। अब तक इसमें 132 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है, जो खबर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अभी ये तादाद और बढ़ चुकी है, कुछ थोड़ा इजाफा इसमें हो चुका है जो मेरे रिपोर्ट्स हैं। और ये 4 फ़ोटोज़ हैं जो आप देखेंगे पहाड़ों के बीच में। ये बिल्कुल खुश्क इलाके हुए करते थे, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। अब यहाँ एक समंदर जैसा दरिया बहुत चौड़ा बह रहा है और ये बाढ़ का पानी है। अब कमाल की बात यह है कि इसे रिजर्वायर के तौर पर किसी रिजर्वायर तक ले जाने के कोई इंतज़ामात नहीं है। इस गरीब मुल्क के पास इरिगेशन करने का भी कोई ऐसा नहीं है ज़रिया कि यहाँ से पानी और इलाकों में जा पाए। बस जो इन इलाकों में लोग रहते थे सूखे में, वो और 2-4 हो चुके हैं और फ़िलहाल उन लोगों की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। वापस गज़ा और मिडिल ईस्ट चलते हैं। गज़ा के देर अल बला में लाखों फ़लस्तीनी जो रह रहे थे अपने टूटे फूटे घरों में और तंबुओं में, वो सब एक मर्तबा फिर से बेघर कर दिए गए हैं, क्योंकि इजराइल की फ़ोर्स के टैंक यहाँ घुस रहे हैं और इन सब लोगों को शहर खाली कर देने को कहा गया है। तो अब इन लोगों की तरफ से एक ग्राफिकल फ़ोटो अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने छापा है, शाया किया है और उसमें लिखा है, जो फ़लस्तीनियों की बात है वही लिखी, ऑल दैट इज़ लेफ्ट फॉर अस इज़ द सी। हमारे पास सिर्फ समंदर बचा है, हम सब कुछ गंवा चुके हैं, घर, पैसा, सब कुछ, छत सब, ज़मीन, खेत सब, अब बस समंदर। और समंदर के किनारे ये हज़ारों लाखों लोगों के आप तंबू, उनके टेंट ये देख रहे हैं। सोचिए, समंदर के किनारे बीच पर बैठकर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो यहाँ समंदर है वहाँ लोग जानते हैं कि समंदर के किनारे रह पाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से जो हवाएं आती हैं, हवा में नमक घुला हुआ होता है और भी न जाने कुछ चीज़ें वगैरह, ये सब। तो ये सब लोग अब समंदर के किनारे हैं। बस अल्लाह इनकी मुश्किलें दूर करें, इनकी ज़िंदगियों को आसान फरमाए और बस इन्हें इनका मुल्क मिल जाए, ये जंग रुक जाए। हमारी तो यही दुआ है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो है, बहुत से लोगों को मेरी इन बातों से तकलीफ़ हो, कहते हैं बस न्यूज़ दिया करो। आप बस न्यूज़ तक देखा करें, उसके बाद चले जाया करें। मैं अपने व्यूअर से बात करता हूँ जो रोज़ देखते हैं, मैं उनसे बात करता रहूँगा। वेस्ट बैंक में दुकानें और बाज़ार आज बंद रहे, क्योंकि वहाँ पर 5 फ़लस्तीनी मारे गए इजराइल की एयर स्ट्राइक में, ड्रोन स्ट्राइक में। और इसको लेकर फ़लस्तीनियों में बड़ी नाराज़गी है। वेस्ट बैंक में बाज़ारों पर, शटर्स पर, दुकानों पर आप ताले लगे हुए देखेंगे और पूरी सड़कें सन्नाटों में हैं। आप देख रहे होंगे कार वगैरह जो हैं वो रुकी हुई हैं, सब थमे हुए, दूर तक बाज़ार, आप गलियां देखिए, कार देखिए, सब थमे हुए हैं। अब से कुछ घंटों पहले समंदर में शिकार करने गए मछली का, ताकि अपने बच्चों को के पेट पाल सकें, शिकार करने गए 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया उनकी नावों पर। वो सब फिशरमैन थे, सब मछुआरे थे और उन पर ताबड़तोड़ जो है वो ड्रोन से स्ट्राइक की गई गज़ा के साहिल पर और इन सब को
ख़त्म कर दिया गया। ये लोग अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ मछलियाँ लेने गए थे, कुछ इन्हें खिलाते, कुछ बेचकर घर को पैसे लाते तो दूसरे ज़रूरत के सामानात आ सकते। खैर, ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने एक सुन्नी पॉलिटिशियन को अपना डिप्टी बनाया है रूरल अफेयर्स के लिए। तो ग्रामीण मामलों के लिए, ये गांव में किस तरीके से क्या कुछ काश्तकारी और सिंचाई और ये सब वगैरह, इरिगेशन, इन सब को देखने के लिए, क्योंकि इन्हें बड़ा तजुर्बा था, तो इन्हें ये सुन्नी पॉलिटिशियन है। अब आप कहेंगे सुन्नी शिया करते हो आदिल भाई, भाई ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उनकी हेडलाइन है सुन्नी पॉलिटिशियन, उन्होंने रच रच के लिखा है, हम तो बस पढ़ रहे हैं। ईरानियन जो है प्रेसिडेंट ने अब्दुल करीम हुसैन ज़ादे, ये एक सुन्नी पॉलिटिशियन है और बड़े अच्छे पॉलिटिशियन बताए जाते हैं। इनका तजुर्बा इस एरिया में ज़्यादा है, इस क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए इन्हें इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। अच्छी बात है, मैं तो अच्छे लगता है मुझे ऐसी खबरों को। ईरानियन टर्किश एनवॉयस जो हैं वो बगदाद में हैं और रीजनल इश्यूज़ पर उन्होंने बड़ी तगड़ी तरीके से बात की है। ईरान और तुर्की के एनवॉय और डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स कहाँ बात कर रहे हैं? इराक में। मैं रोज़ आपको ये खबरें इसलिए बता रहा हूँ, ये वाले वहाँ आ गए, ईरान आ गए, ईरान वाले वहाँ चले गए। आप समझिए कि कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ें चल रही हैं और ये नॉर्मल भी हो सकती हैं, लेकिन आपको इसकी खबर तो होनी चाहिए क्योंकि आप दुनिया भर की खबरें देख रहे हैं। सैयद अली ख़ामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा है कि ईरान आज साइंस, मिलिट्री प्रोग्रेस, रीजनल पावर, स्ट्रेटजिक डेप्थ की वजह से जाना जाता है। पहले ईरान अपने कालीनों वगैरह इन चीज़ों के मतलब जो है नक्काशियों की वजह से जाना जाता होगा, लेकिन आज ईरान की वैल्यू ये है कि दुनिया उन्हें उनकी साइंस की वजह से, क्योंकि वो स्पेस में भी बड़ी चीज़ें भेज रहे हैं, मिलिट्री प्रोग्रेस की मिसाइल्स और ड्रोन्स, अब उनकी दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी को ख़रीदने को बेकरार है। रीजनल पावर, एकदम से ईरान उभरा है रीजनल पावर के तौर पर, जो सीधे अमेरिका और इजराइल को इस रीजन में टक्कर दे रहा है। और स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलेशंस डेवलप किए हैं और अपनी छाप छोड़ी है रीजन में और उसके बाहर भी, इस सब की वजह से पहचाना जा रहा है ईरान। ये आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने कहा है। बहुत डिटेल में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आप लोग कहाँ सुन पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें बस यहीं ख़त्म होती हैं। उम्मीद ये करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।